Good afternoon, students. In previous lecture, we discussed about the Prime Minister of India. Today, we discuss about the Council of Ministers, which is headed by the Prime Minister of India. आज हम मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लीडरशिप किसके हाथों में होती है? देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है. As we know that India has a parliamentary system of government in which the cabinet is the powerful body or the part of Council of Ministers and headed by the Prime Minister of India. So there are two words, one is cabinet and one is Council of Ministers. Cabinet means Mantri Mandal and Council of Ministers means Mantri Parishad. Cabinet comprising 50 to 20 members. It means it is the group of 15 to 20 most important ministers of the government. On the contrary, the Council of Ministers usually 60 to 80 ministers, but the most experienced person become the part of cabinet. So today we discuss about the types of ministers in the Council of Ministers, what is the structure of the Council of Ministers, what is the difference between the cabinet and the Council of Ministers, and then we discuss about the functions of the cabinet. So let us start with the Council of Ministers. The Council of Ministers is appointed by the President on the advice of the Prime Minister. मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है. और किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है. While appointing the Council of Ministers, he has to keep in mind that all the major communities and geographical regions of the country find a representation in the ministry. There is a concern in the minds of Prime Minister of India. What is the concern? That he always take care of the representation of each geographical unit of India and each caste, language, region, etc. कभी भी मंत्री परिषद का निर्माण करते समय हमेशा प्रधानमंत्री को ये दिमाग में रखना पड़ता है कि प्रत्येक क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिले. प्रत्येक जो ग्रुप है, चाहे वो रिलीजन बेस्ड है, चाहे वो कास्ट बेस्ड है, सभी को मंत्री परिषद में क्या होना चाहिए? स्थान मिलना चाहिए. ऑल मेंबर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन्स द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होना चाहिए. इफ़ ए नॉन मेंबर इज़ अपॉइंटेड, मान लेते कोई ऐसा सदस्य जिसको मिनिस्टर बना दिया गया है, एज अ मिनिस्टर ही ईदर हैज़ टू सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months. तो उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? चुनाव जीतना पड़ेगा या सदस्यता जो है वो पार्लियामेंट के लेनी पड़ेगी. द कॉन्स्टिट्यूशंस 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वें संवैधानिक संशोधन जो 2003 में पास हुआ था, लिमिट्स द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. सो 543 मल्टीप्लाई बाय 15/100. जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल नंबर ऑफ क्या होगा? मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 91वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो कुल लोकसभा के सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है. मिनिस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 रैंक्स. मिनिस्टर्स को 3 रैंक्स के अंदर बांटा गया है. सो द रिजल्ट ऑफ दिस multiplication is 81.45%. It means usually in a council of minister 60 to 80 members are the part of the council of ministers. Next, now we are discussing about the types of ministers. In some books there are 4 types of minister. First is cabinet minister, second minister of states with independent charge, third minister of state, and fourth deputy ministers. But we discuss the major 3 categories of ministers. First is cabinet ministers. These are heads of departments like home, defense, etc. Cabinet ministers heads the important ministries of the central government like the home ministry, finance ministry, defense ministry, human resource and development ministry, etc. टॉप रैंक के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, मंत्रिमंडल.
और ये महत्वपूर्ण विभाग जितने भी होते हैं उन सभी के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, विदेशी विभाग हो, वित्त विभाग हो, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। जनरली द कैबिनेट मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 18 to 25 मिनिस्टर्स। प्राय 18 से 25 जो संख्या होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। एट प्रेजेंट देयर आर 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स इन प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड क्रूशियल मीटिंग्स एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन द पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। देश के लिए जो भी नीति योजनाएं बनती हैं उनमें सबसे बड़ा अगर रोल रहता है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का रहता है। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। These have two types, one is independent charge and one is not with the independent charge. They are not members of the cabinet. They may or may not be given an independent charge of a ministry. They attend cabinet meetings only when invited. So these ministers are not the member of the cabinet. It means that they have charge विद इंडिपेंडेंट और नॉट। इट मीन्स इन्हें किसी भी मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार मिल भी सकता है और नहीं भी। इन्हें आमंत्रित किए जाने पर ही ये क्या कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज़ टू टाइप्स, वन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड सेकेंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। द नेक्स्ट एंड द लोएस्ट रैंक मिनिस्टर्स आर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। These ministers are lowest in the rank. They are not given independent charge of departments. इन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभाव नहीं मिलता है। They are attached to the cabinet minister or ministers of state to help them in the administrative, political and parliamentary duties. So these ministers are helping hands to the cabinet minister or the state ministers to help them in the एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। जितने भी कर्तव्य होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर के, उनमें ये हमेशा इनकी मदद करते हैं। एंड दे नेवर अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। और ये मिनिस्टर कभी भी कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट दैट व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट इज़ द सब पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। येस, इट इज़ फैक्ट दैट इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का एक लघु रूप है। अब हम एक एक करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम जानेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द बॉडी दैट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस मैटर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है, राष्ट्रपति जी को सलाह देता है अलग अलग मामलों पर एंड इज़ फॉर्म टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन द रनिंग गवर्नमेंट। और जो सरकार चल रही होती है उसमें प्रधानमंत्री जी को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अगर कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए ही क्या बनाए जाते हैं, इनका निर्माण होता है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक संस्था है। It consists 40 to 60 ministers. It means that they have 60 to 80 ministers, but most probably they have 40 to 60 ministers, because I told you that total number of Lok Sabha constituency multiply with 15 or divided by 100. So 80 members council of ministers के अंदर हो सकते हैं। Council of ministers do not make policies. कभी भी मंत्री परिषद नीतियों का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो टॉप रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज फ्रेम द पॉलिसीज फॉर द कंट्री। नो कलेक्टिव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय इट। कोई सामूहिक निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। एंड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रेयरली हेल्ड। और इनका जो सम्मेलन होता है वो कभी कभार होता है। सो दिस इज़ अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब बातें मंत्री परिषद के बारे में थी। अब हम बात करेंगे कैबिनेट के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, जो सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। The cabinet is a small body of the council comprising of the most experienced. It means सबसे अनुभवी अगर कोई नेता अगर पार्ट होते हैं तो कैबिनेट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। चाहे उनके पास होम मिनिस्ट्री हो, चाहे उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री हो।
फॉर्मली इट वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहले ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, कोई बॉडी नहीं थी, बट आफ्टर अमेंडमेंट इन द एक्ट 1978 द कैबिनेट गोट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बट बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 1978 में कैबिनेट को भी एक संवैधानिक जो बॉडी है उसका क्या दे दिया गया था, टैग दे दिया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 18 मिनिस्टर्स, प्राय इसके अंदर 15 से 18 मिनिस्टर होते हैं। ऑल द मेजर पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, नीतियां होती हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। सेवरल कलेक्टिव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द कैबिनेट, कई सामूहिक जो कार्यक्रम हैं, निर्णय हैं, नीतियां हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर फ्रिक्वेंटली हेल्ड, और हमेशा जो सम्मेलन है किनके, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो प्राय होती रहती है, फ्रिक्वेंट बेसिस के ऊपर होती रहती है। सो अगेन वी रिवाइज, Council of Minister is a comprehensive term while cabinet is just like the internal committee of it. Council of जो ministers है ये एक बड़ा रूप है, और जो कैबिनेट है वो इसका एक क्या है, पार्ट होता है। All the ministers are member of Council of Minister while cabinet includes only effective and experienced ministers. जितने भी नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभवी नेता किस में होते हैं, वो सारे कैबिनेट में शामिल होते हैं। The members of Council of Minister do not make policies. It is the division between the distinction between the Council of Minister and Cabinet Minister. तो मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो कभी नीतियों का निर्माण नहीं करते हैं। They are framed by the cabinet only. So who framed policies in our country India? By the cabinet, by the headship of our Prime Minister of India. The strength of Council of Minister is 60 to 65 and Cabinet is 50 to 20 ministers. Council of Ministers meets rarely and Cabinet meets regularly. So it is the major difference between the Cabinet and the Council of Ministers. ये अंतर है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच। Let us start that what are the functions of the Cabinet. There are several functions. I mean to say that most important functions for the country are taken by the cabinet. The cabinet forms the key internal and external policies of the government. सरकार की आंतरिक और बाहरी नीतियों का निर्माण करना किसका काम होता है, कैबिनेट का काम होता है। There is no sphere of administration left untouched by the cabinet. ऐसा प्रशासन का कोई भी हिस्सा नहीं है जिसमें किसका हस्तक्षेप ना हो, मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप ना हो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, नीतियों के निर्माण के बाद द कैबिनेट वर्क्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग दैम, अब उनको लागू करने का भी काम कौन करती है, कैबिनेट करती है। एज मिनिस्टर्स आर ऑल्सो द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि दीज मिनिस्टर आर वर्क्स बोथ एज ए लेजिस्लेटर एंड एज ए एग्जीक्यूटिव, ये विधान पालिका का भी काम करते हैं जब ये संसद में होते हैं, और ये कार्यपालिका का भी काम करते हैं जब ये अपने ऑफिस के अंदर होते हैं, जब उस पॉलिसी को ये क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। द कैबिनेट गाइड्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेट्स दियर एक्टिविटीज़। कैबिनेट क्या करता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, उनको सहयोग देता है, उनको गाइड देता है, मार्गदर्शक का काम करता है। की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड बाय द कैबिनेट, जितनी भी विदेश नीति से संबंधित नीतियां हैं उनका निर्माण भी कैबिनेट करता है। विच इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स, जो राजनीतिक, जो हमारे राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उन सभी की नियुक्ति किसके एडवाइस पर की जाती है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। साइनिंग ऑफ द ट्रीटीज, जितनी भी संधियों के ऊपर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, एंड the declaration of war and peace, all these important works are done by the president on the advice of the cabinet. So cabinet in reality they are the real ruler of our nation because prime minister is the head of the cabinet. Cabinet carries out 80% of legislation. विधायिका का 80% काम कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बिल्स इन पार्लियामेंट, जितने भी बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, डिसीजन ऑन ऑर्डिनेंसेस एटसेट्रा आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सो ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट।
द कैबिनेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस, और राष्ट्रीय वित्त के ऊपर जितना हमारे देश के अंदर धन होता है उस पर कैबिनेट का क्या होता है, संपूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। द बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश में बजट कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। लिसन वन थिंग केयरफुली दैट द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of April to 31st of March. It is the duration of the financial year in our country, India. But in this year, our financial year is start from 1st of July due to COVID-19. अप्रैल, मई और जून को आज आपकी बार फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि कोविड-19 जब काफ़ी ज़्यादा अभी भी फैल रहा है, लेकिन जब शुरुआती दौर में था तो कोविड-19 के कारण से क्या किया गया था कि इन 3 मंथ्स को इस फाइनेंशियल ईयर से एक्सक्लूड कर दिया गया था। ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डन ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो सभी किसके एडवाइस पर की जाती है, हमारे कैबिनेट के एडवाइस पर की जाती है। द प्रेसिडेंट इन थ्योरी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सैद्धांतिक तौर पर देखें तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का, हमारे राज्य का तो स्पेशली क्या दिख रहे हैं कि इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बट ऑल हिज अबव मेंशन पावर आर एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। परंतु ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति जी तभी अपना एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं जब उन्हें किसकी सलाह मिली हो या किसका इंस्ट्रक्शन या निर्देश मिला हो, हमारे कैबिनेट का। द 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, द 42nd अमेंडमेंट is also known as mini constitution, which was effected in 1976 during emergency time by श्रीमती इंदिरा गांधी। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये पारित हुआ था, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। और एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वो क्या था, हैज़ मेड इट कंपलसरी, यह अनिवार्य कर दिया गया था फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए, टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, की जो भी सलाह होगी कैबिनेट के द्वारा जो दी जाएगी उसको किसे मानना पड़ेगा, उसको राष्ट्रपति जी को मानना पड़ेगा। सो दिस वॉज done by the 42nd amendment in 1976, that all the advices which are given by the cabinet to the president is acceptable by the president. So dear students, today we discuss about the council of ministers, the types of ministers, what is the distinction between the cabinet minister and the council of minister, and the functions of the cabinet. Thank you and have a nice day.